Hello, viewers and my dear students. How are you all? Hope you are doing well. Myself, Richa Sharma. Before I begin with my today's video, I would like to remind you all to subscribe the channel so that you will be updated with my latest video and you will be connected with my channel. So, without wasting much of your time, let us begin with today's video. In the last session, you saw about receipt and payment account. So today we'll begin with our video with the topic income and expenditure account. Okay, so let us begin with the introduction about income and expenditure account. So student, the role of non-trading firm is to provide service to its member. As you all know this, we have discussed in the introduction of the chapter. So, however, in order to do the same, it's need to earn some revenue and incur certain expenditure. जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी जो सर्विस होती है वो उनके मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना होता है, बट वो काम करने के लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं रेवेन्यू अर्न करने की ज़रूरत होती है ताकि जो एक्सपेंडिचर इनक्योर हुए वो उनको पे कर सके. When a non-profit firm does so, it needs to prepare an income and expenditure account which can help it in asserting the surplus earned or deficiency incurred during a period. So जो non-profit organization होती है वो income and expenditure बनाती है ताकि उन्हें ये पता चले कि वो surplus earn कर रहे हैं या अगर deficiency हुई है तो उतने period में कितने deficiency या surplus हुआ है. So student, let us understand more about income and expenditure account. So let's see the learning objectives. So after studying this topic, you will be able to explain the procedure of preparing income and expenditure account from given receipt and payment account and some additional information. Second thing, you will distinguish between receipt and payment account and income and expenditure account. As I gave you the introduction about the topic, and we are watching the topic in detail. So ये सब पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का प्रोसीजर क्या है और आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे बनाते हो. एंड सेकेंड थिंग, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. ओके, सो व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? It is a summary of income and expenditure of the accounting year. It includes only revenue items and the balance at the end represents surplus or deficit. It means जो income and expenditure account है उसके नाम से ही हमें ये पता लग जाता है कि वो income और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? वो एक समरी है. किस चीज़ के बारे में समरी है? जितने भी हमारे इनकम है एंड जितने भी एक्सपेंडिचर है अकाउंटिंग ईयर के उसके बारे में. Then it includes only revenue item. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम इंक्लूड करते हैं, कैपिटल नहीं. और ये बोला गया है कि जो बैलेंस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या तो वो सरप्लस रिप्रेजेंट करता है या तो वो डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज गिवन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पस एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज. जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो कहीं ना कहीं सेम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. मतलब उनका जो पर्पस होता है वो सेम होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या पता कर सकते हैं कि वेदर अ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और इट्स इनक्योरिंग लॉस. इन द सेम वे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ये बताता है कि सरप्लस है या डेफिसिट है. All the revenue items relating to the current period are shown in this account. The expenses and the losses on the expenditure side and incomes and gain on the income side. तो जितने भी रेवेन्यू आइटम होते हैं करंट पीरियड के वो हम ये अकाउंट में शो करते हैं एंड जितना भी हमारा एक्सपेंसेस या हमें लॉस हुआ है वो हम एक्सपेंडिचर साइड पे नोट डाउन करते हैं और जितना भी हमें इनकम एंड गेन हुआ है वो हम इनकम साइड नोट डाउन करते हैं. Next it is given, it shows the net operating result in the form of surplus
फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैलेंस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो या तो क्या तो सरप्लस होगा, नहीं तो वो डेफिसिट होगा। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट बताता है, दो चीज़ के फॉर्म में, सरप्लस और डेफिसिट के फॉर्म में। जो सरप्लस होगा इट मीन्स कि हमारा जो इनकम है वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग अगेन, सरप्लस ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे हमारी इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट वो कंडीशन होगी जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारे इनकम से। सो इन शॉर्ट, सरप्लस मतलब ये, जब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकम है वो उसके खर्चे से ज़्यादा है, दैट इज सरप्लस। एंड डेफिसिट इज जहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, जितना कमा नहीं रहे हैं, जितना उनका रेवेन्यू, जितना उनका इनकम नहीं है, उससे ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर है। और ये बोला गया है कि विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड शोन इन द बैलेंस शीट, सरप्लस और डेफिसिट, इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड शोन इन द बैलेंस शीट। Next, it is given the income and expenditure account is prepared with the help of receipt and payment account. जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से और विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो कहीं ना कहीं रिलेट होगी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। Hence, many items appearing in the receipt and payment account need to be adjusted. Okay, so after the meaning, let us see the features of income and expenditure account. The first features of income and expenditure account is its nature. So the nature of income and expenditure account is it is nominal account. Hence, it is debited with expenses and losses and it's credited with the income and gain. जैसे हमने गोल्डन रूल्स पढ़ा था तो उसमें नॉमिनल था, तो नॉमिनल का क्या रूल्स था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सो यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पे डेबिट हम वो चीज़ों को करते हैं जो हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, एंड क्रेडिट हम जितनी भी हमारे इनकम्स एंड गेन होती है वो। Now the second feature is basis of accounting. It records income, expenses, losses of revenue nature. Third is accounting period. It records only those income, expenses and losses which relate to the current accounting period, whether paid or not. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं है। हम इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉस जो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के हैं वो ही हम रिकॉर्ड करते हैं। बट एक पॉइंट है, यहाँ पे बोला गया है कि वेदर पेड और नॉट, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं था। जो नॉट पे, जो अनपेड आइटम थी वो हम रिकॉर्ड नहीं करते थे। The fourth features of income and expenditure account is opening and closing balance. It does not have any opening balance. Its balance at the end is either surplus or deficit which is transferred to the capital fund in the balance sheet. I already told you students के फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस नहीं होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इंक्लूड होता है। बट यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, जो बैलेंस होता है, जो बैलेंसिंग फिगर जैसे हम बोलते हैं, तो बैलेंस एट द एंड जो होता है वो या तो हमारा सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा, और जो भी हो हम उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड में। नाउ द फिफ्थ वन इज एडजस्टमेंट. These accounts is prepared on accrual basis of accounting, and thus all the adjustments relating to prepaid or outstanding expenses and income, provision for depreciation or doubtful debts are made. Now the sixth features of income and expenditure account is no capital items. As I already told you, it include only revenue items, so here capital items are not included in income and expenditure account. Now the seventh features of income and expenditure account is it is similar to the profit and loss account.
This account is prepared in the same manner in which a profit and loss account is prepared. Okay, so now let us see the steps in the preparation of income and expenditure account. It means कि income and expenditure account बनाने का procedure क्या है, steps क्या है. So the following steps may be helpful in the preparing an income and expenditure account from the given receipt and payment account. स्टूडेंट्स, आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाना होता है. सो इसीलिए जो फर्स्ट पॉइंट दिया है दैट इज परस्यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थरोली. मतलब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को थरोली परस्यू करना है, चेक करना है. सेकेंड पॉइंट ये बोला गया है कि एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एज दे आर नॉट एन इनकम. जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें हमें ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग दोनों हमें बैलेंस हमारे पास होते हैं. ओपनिंग हमें दिया रहता है, क्लोजिंग हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. बट जब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है तो हम ये दोनों चीज को एक्सक्लूड कर देते हैं. द रीजन इज दैट वो हमारा इनकम नहीं है. Next point it is given, exclude the capital receipt and capital payment as these are to be shown in the balance sheet. मैंने आपसे पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के टाइम हम रेवेन्यू आइटम्स ही इंक्लूड करते हैं, कैपिटल आइटम्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं. इसीलिए थर्ड पॉइंट ये बोला गया है कि जितना भी कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट है हमारा हम उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे बिकॉज हम उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं. Fourth point is given, consider only the revenue receipt to be shown on the income side of income and expenditure account. जितना भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है उसको हम कंसिडर करेंगे और हम लोग कैपिटल रिसिप्ट को एक्सक्लूड करेंगे. रेवेन्यू को नहीं, रेवेन्यू को हम कंसिडर करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट को, और वो रिसिप्ट है इसलिए हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड शो करेंगे. In the last point we saw about revenue receipt. Now अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड नोट डाउन करेंगे. सो ऑब्वियसली अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंसेस है तो हम उसको एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करेंगे. Side of the income and expenditure account with due adjustment as per as the additional information provided relating to the amount received in advance and this not yet received. जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दैट नीड टू बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द सरप्लस डेफिसिट फॉर द करंट ईयर. जो आइटम्स हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कंसिडर नहीं करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे सो दैट वी कम टू नो सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर. फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन है हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बट विल इंक्लूड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. द लास्ट इज गिवन प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट. As we saw in learning objectives that after studying this topic you will be able to distinguish between income and expenditure account and receipt and payment account. So student, let us see what is the difference between both. दोनों अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है. सो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह सेम है. जैसे मैंने कहा समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन द सेम वे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कहीं ना कहीं समरी है कैश अकाउंट की. सेकेंड डिफरेंस दोनों का ये है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को इंक्लूड करता है बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट इंक्लूड्स और इट रिकॉर्ड्स बोथ, दैट इज कैपिटल आइटम एज वेल एज रेवेन्यू नेचर आइटम्स. Student, let me remind you about the capital and the revenue nature items. That is, the capital nature transaction are those transactions which deals with long-term items like assets, liability, owner's equity, and those transactions are called revenue nature, which deals with short-term items like income and expense.
The third difference between both the account is period. So income and expenditures account relate only to the current period. जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड्स के इनकम और एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करता है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं है. वो करंट ईयर हो या प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, तीनों चीज़ के रिसिप्ट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करता है, रिलेट करता है कहीं ना कहीं. नाउ द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन बोथ द अकाउंट इज डेबिट साइड. जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसकी जो डेबिट साइड होती है वो एक्सपेंसेस या लॉसेस इंडिकेट करता है. यहाँ वहाँ पे एक्सपेंसेस या लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं. बट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका जो डेबिट साइड है वहाँ पे हम जितनी भी हमें चीज़ें रिसीव हुई है, जितना भी हमारा रिसिप्ट है, हम वो रिकॉर्ड करते हैं. सो द फिफ्थ वन इज क्रेडिट साइड. जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड हम इनकम या तो गेन जो हमें हुआ है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड हम जितना भी हमने पेमेंट किया है, जो भी हमारा कैश पेमेंट हुआ है वो हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड. नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं. ये पॉइंट हमने स्टेप्स में देखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन. हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग बैलेंस. Income and expenditure account does not include any opening balance, but receipt and payment account includes opening balance. That is, balance in the beginning represent cash in hand or cash at bank or overdraft at the beginning. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तीन चीज़ें हो सकती है, क्या तो कैश इन हैंड, या तो कैश एट बैंक, या तो बोथ, अदरवाइज ओवरड्राफ्ट. Next and the last point of distinguish between both the account is the closing balance. Balance at the end represent excess of income over expenditure or vice versa. As I told you earlier that जो बैलेंस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इट इंक्लूड्स सरप्लस और डेफिसिट, विच मीन्स क्या तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, दैट इज सरप्लस सिचुएशन, और डेफिसिट वेयर द एक्सपेंडिचर इज मोर in comparison to income. But receipt and payment account includes balance at the end, which means जो बैलेंस होता है यहाँ पे वो हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट if it is given. So student, as you can see on your screen, this is the format of income and expenditure account. आप देख सकते हो कि जो डेबिट साइड है दैट इज एक्सपेंडिचर. जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है वो हम इंक्लूड करेंगे डेबिट साइड, और जितनी भी हमारी इनकम है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड. In the end, I would like to conclude that not-for-profit organizations are not set up for the purpose of earning profit. Therefore, they don't need to prepare profit and loss account. Instead, they prepare income and expenditure account at the end of accounting period to determine surplus or deficit. ये वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से वो ये असर्टेन करती है कि वेदर देयर ऑर्गेनाइजेशन आर अर्निंग और सरप्लस है या डेफिसिट है. जो इनकम एंड गेन्स होता है वो हम अकाउंट की क्रेडिट साइड इंक्लूड करते हैं, और जो एक्सपेंसेस होता है हम उसको डेबिट साइड इंक्लूड करते हैं. जो डिफरेंस होता है दोनों साइड का वो या तो सरप्लस होता है, दैट इज क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है डेबिट साइड से, दैट इज इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट होता है वेयर डेबिट साइड इज मोर देन दी क्रेडिट साइड. जो सरप्लस है वो हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, वेरएज जो डेफिसिट होता है हम उसको डिडक्ट करते हैं कैपिटल फंड में इन द बैलेंस शीट. सो दिस वाज अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. होप माय वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब द चैनल and like and comment. Thank you.